Hello, friends. Welcome to Bankers Platform. Today, we have come again with our new session of most expected questions for bank promotion exam. So, let's start. Before starting, friends, please write 1 to 20 counting on your notebook and give the answers of the questions yourself and check your preparation level and share your score in the comment section. Please also make notes of these important questions for your future reference. So let's start, friends, with our first question. All authorized payment systems and instruments such as Dash are permitted by RBI for linking with the fast tags, which can be used for various types of payments like vehicle toll, parking fee, etc. फ्रेंड्स फास्ट टैग का आप सबने नाम सुना होगा. सो द क्वेश्चन इज कि फास्ट टैग जो है उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है परमिटेड है आरबीआई के द्वारा. और हमारे ऑप्शंस हैं. अवर फर्स्ट ऑप्शन इज नॉन बैंक पीपीआईज. पीपीआई इज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स. B is card, C is Unified Payments Interface, which is UPI, and the last option is all of the above. So let's see, friends, what is the correct option. The correct option is all the above. So ये जो तीनों है नॉन बैंक पीपीआईज कार्ड्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, these all the threes are allowed, all the threes are permitted by RBI. Next question. Question number 2. With effect from 1st January 2020, all business entities with turnover of rupees dash are required to provide digital payment facility. डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी के लिए कितने से ऊपर का जो टर्नओवर है उन्हें कंपलसरी है. सो आवर ऑप्शंस आर 10 crore and above, 50 crore and above, 100 crore and above, 200 crore and above. So let's see what is the correct answer. Correct answer is 50 crore and above. 50 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है उन्हें डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना कंपलसरी है. लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 3. With effect from 1st Jan 2020, all business entities with a specified turnover are required to provide digital payment facility. If they fail to do so, they will have to pay fine of dash. जैसा कि फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन में था कि 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों को डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है. एंड इफ दे डोंट डू सो, इफ दे फेल टू डू सो, तो कितनी पेनल्टी होगी. आवर ऑप्शंस आर 10,000 rupees per day, 5,000 rupees per day, 1,000 rupees per transaction, 500 rupees per transaction. So let's see what is the correct answer. Correct answer is 5,000 rupees per day. This is the fine. Let's move to our next question. Question number 4. As per RBI, member banks cannot levy any charges from dash for fund transfers done through NEFT system which are initiated online, like internet banking or mobile apps of the banks. सो फ्रेंड्स नेफ्ट, जो नेफ्ट हमारे कस्टमर्स करते हैं, तो आरबीआई ने किन के ऊपर चार्जेस लगाने के लिए वेव किया है. सो आवर ऑप्शंस आर सेविंग बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, कैश क्रेडिट अकाउंट्स, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल द अबव. सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज सेविंग बैंक अकाउंट. अगर सेविंग अकाउंट से कोई भी नेफ्ट ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके ऊपर हमें कोई भी चार्जेस नहीं लगाने, जो भी वो ऑनलाइन करेंगे. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. हु अमंग द फॉलोइंग bears the exchange fluctuation risk for the foreign currency in respect of foreign currency non-resident बैंक FCNR-B accounts. FCNR जो अकाउंट्स होते हैं जो हम नॉन रेजिडेंट्स के खोलते हैं, उसमें जो फॉरेन करेंसी का जो रिस्क है, एक्सचेंज रिस्क, वो कौन बियर करता है. रिजर्व बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपॉजिटर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज कंसर्न बैंक. सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज कंसर्न बैंक. जो भी फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशंस होगी, उनका जो भी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है वो
कंसर्न बैंक, जिस बैंक में भी उसका डिपॉजिट है वो बियर करेगा. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. अनसिक्योर्ड exposure in the context of bank loans means where the quantum of security is dash compared to amount of loan. अनसिक्योर्ड जो एक्सपोजर है हमारा बैंक्स में, हम अनसिक्योर्ड एक्सपोजर किसे कहते हैं? जहां पे सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो कितने से कम हो, 50% और लेस, 20% और लेस, 10% और लेस, 5% और लेस. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज 10% और लेस. अगर 10% से कम वैल्यू है तो वो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर में काउंट होगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. स्टार सीरीज नोट्स रिप्लेस व्हाट? जो हमारे स्टार सीरीज नोट्स हैं वो किस चीज को रिप्लेस करते हैं? म्यूटिलेटेड नोट्स, डिफेक्टिवली प्रिंटेड नोट्स, सॉइल्ड नोट्स, काउंटरफिटेड नोट. सो लेट्स सी व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर. आवर करेक्ट आंसर इज डिफेक्टिवली प्रिंटेड नोट्स. सो जो भी डिफेक्टिवली प्रिंट होते हैं नोट्स, तो उसमें स्टार सीरीज के नोट्स रिप्लेस करते हैं. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. In Basel III, the term supplementary capital or gone concern capital represents which of the following? Basel III में जो supplementary capital या gone concern capital है वो किसे represent करता है? Our options are tier 1 capital funds, tier 2 capital funds, perpetual non-cumulative preferences share, statutory reserves. So let's see what is our correct answer. Our correct answer is टीयर टू कैपिटल फंड्स. जो टीयर टू कैपिटल फंड्स हैं उसे ही हम गॉन कंसर्न कैपिटल कहते हैं. लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. In a limited company, a check was issued by one of the directors of the company to ABC Company. Check is presented for payment after death of the director. In this situation, what the bank will do from the following? एक लिमिटेड कंपनी है जिसमें एक चेक इशू किया है एक डायरेक्टर ने, और उस डायरेक्टर की जो है डेथ हो जाती है. तो इस सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? अवर ऑप्शंस आर बैंक कैन नॉट पे द चेक एज द ड्रॉर एक्सपायर्ड. बैंक पे नहीं कर सकता क्योंकि ड्रॉर जो है वो एक्सपायर हो चुका है. बैंक कैन पे द चेक एज द कंपनी इज स्टिल ए लीगली कॉम्पिटेंट एंटिटी कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्टर साइंड एज एन एजेंट. कि बैंक पे करेगा क्योंकि जो कंपनी है वो अभी भी लीगली एंटिटी है और जो डायरेक्टर है उसने एजेंट की कैपेसिटी में साइन किया था. बैंक शुड गेट द चेक ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम अदर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड पे. बैंक को दूसरे जो डायरेक्टर हैं उनसे ऑथेंटिकेशन लेने के बाद पे कर सकते हैं. बैंक शुड एडवाइज द कंपनी टू गिव अनदर चेक टू एबीसी कंपनी. या बैंक को एडवाइज करना चाहिए कि वो दूसरा चेक दें. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. Correct answer is B. Bank can pay the check as company is still legally competent entity. बैंक जो है वो चेक पे कर सकता है क्योंकि जो डायरेक्टर है उसने एज ए एजेंट साइन किया था और कंपनी के लिए साइन किया था और कंपनी अभी भी legally competent hai, so bank can pay the check. Let's move to question number 10. What is the minimum value of stock of gold coins, bullions and foreign securities which RBI has to maintain at any point of time against issue of currency? RBI को कितना अमाउंट रखना है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन, बुलियन एंड फॉरेन करेंसी अगर उसे करेंसी इशू करनी है? सो लेट्स सी अवर ऑप्शंस. 200 करोड़, 215 करोड़, 115 करोड़, 500 करोड़. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज 115 करोड़ रुपीस. 115 करोड़ रुपीस का जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बुलियन एंड फॉरेन सिक्योरिटीज जो है आरबीआई को मेंटेन करना है. Let's move to our question number 11. Our question number 11 is operating profits in bank's profit and loss account refers to. जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बैंक का वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कहाँ हम दिखाएंगे? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज. जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्रोविजंस और कंटीजेंसी से
पहले के प्रॉफिट को हम कहेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। What is the risk weightage on consumer credit cards for capital adequacy ratio purpose? जो रिस्क वेटेज एसेट जो रिस्क वेटेज होता है कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड पे, वो कितना होगा कैपिटल एडुकेसी रेशियो के पर्पस के लिए? आवर ऑप्शंस आर 75%, 100%, 125%, 150%। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज 100%. So 100% is the risk weightage. Let's move to question number 13. In case of a failed ATM transaction, account debited but cash not dispensed, time limit to recredit the amount in the account fixed by RBI is। RBI ने क्या फिक्स किया है टाइम, कि अगर किसी की फेल्ड ट्रांजेक्शन है एटीएम की, वो कितने दिन में हमें उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है? आवर ऑप्शंस आर T+2 days, T+3 days, T+5 days, T+7 days. Let's see, friends, what is our correct answer? And correct answer is T+5 days. Earlier it was T+7 days, लेकिन अब जो है ये टाइम घटाकर T+5 days कर दिया गया है। Let's move to question number 14. As per provisions of which of the following, the nominated bank gets a period of dash days to verify the documents drawn under a documentary credit? Documentary credit means, friends, LC, letter of credit को हम documentary credit भी कहते हैं। तो किसके provisions के हिसाब से हम जो है, जो बैंक है, उसे कितने दिन मिलते हैं एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को वेरीफाई करने के लिए? अवर ऑप्शंस आर RBI 7 banking days, FIDAI 5 banking days, UCPDC 5 calendar days, and our last option is UCPDC 5 banking days. So let's see, friends, what is the correct answer, and correct answer is UCPDC 5 banking days. हमें UCPDC के अकॉर्डिंगली 5 बैंकिंग डेज मिलते हैं एलसी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और मिनिमम? अवर ऑप्शंस आर 50 and 10, नो लिमिट एंड 7, 100 and 2, any number as per board resolution. So let's see what is the correct answer. Correct answer is no limit and 7। मिनिमम 7 होने चाहिए शेयर होल्डर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। So let's move to question number 16. As per RBI direction, the operating hours of RTGS for customer transactions are। अगर कस्टमर के लिए हमें कोई ट्रांजेक्शन करना है तो आरटीजीएस की क्या टाइमिंग्स है एज पर आरबीआई? अवर ऑप्शंस आर 7 AM to 4:30 PM, 7 AM to 6 PM, 8 AM to 6 PM, 8 AM to 7:45 PM. So let's see what is the correct answer. Correct answer is 7 AM to 6 PM. आई एम श्योर फ्रेंड्स कि आप लोग अपने आंसर्स जो हैं वो पहले दे रहे होंगे मेरे आंसर्स को देखने से पहले। सो यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर्स सो दैट यू कैन see what is your preparation level for the coming exam. So let's move to question number 17. An exporter wants to open an EEFC account to deposit the exchange earnings. The account can be opened as। एक एक्सपोर्टर है, वो एक अकाउंट खोलना चाहता है EEFC अकाउंट। तो जो EEFC अकाउंट है वो किस फॉर्म में होगा? और ऑप्शंस आर सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, FCNR, B। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज करेक्ट करंट अकाउंट। जो EEFC अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है, एंड EEFC फुल फॉर्म इज एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। सो लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 18। In Atal Pension Yojana, what is the co-contribution of government? कि जो अटल पेंशन योजना है उसमें गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन होती है? अवर ऑप्शंस आर 20% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, 25% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, 35% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, 50% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज 50% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन।
जो भी कंट्रीब्यूशन जो है मेंबर करेगा अपने अटल पेंशन योजना के लिए, उतना ही उसी का 50% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट भी करेगी. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. A trust maintaining a fixed deposit account makes a request to the bank for not deducting tax at source on interest on FD. It will be required to submit. अगर कोई ट्रस्ट का अकाउंट है आपके पास और वो चाहते हैं कि उनके अकाउंट में टीडीएस ना कटे, तो उन्हें कौन सा फॉर्म सबमिट करना होगा? अवर ऑप्शंस आर फॉर्म 15G, फॉर्म 15H, नो सच कंसेशन कैन बी अलाउड, a letter from income tax department. So let's see what is the correct answer. And correct answer is a letter from income tax department. So जो trust है उन्हें एक letter देना होगा income tax department के through, then उनका जो tax है वो deduct नहीं होगा. So friends, let's move to question number 20. This is the last question of the day. Payment banks are restricted to hold a maximum credit balance of rupees dash per individual customer in deposit account. जो पेमेंट बैंक्स हैं वो मैक्सिमम कितना क्रेडिट बैलेंस जो है पर इंडिविजुअल अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं? अवर ऑप्शंस आर 10,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज. सो लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज 1 लाख रुपीज. जो पेमेंट बैंक्स हैं उनके जो डिपॉजिट अकाउंट्स होंगे उनमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक हम डिपॉजिट करवा सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये हमारे 20 क्वेश्चंस का सेट था. दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं हमारे कमिंग प्रमोशन एग्जाम्स में. सो प्लीज फ्रेंड्स, मेक these questions properly, memorize these questions. So friends, thanks for watching. Please like our video. If you have been benefited from our video, please like this and share this video with your friends, relatives and your colleagues, and also subscribe to our channel so that जो भी हमारे न्यू वीडियोस होंगे उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके. So friends, thank you. Thanks for watching. Have a nice day.